Hello, my dear students. Very precious good morning to all of you. Myself, Dr. Sanjay Singh, biology teacher, Subra Singh Children Academy, Agurupur Kalan, Jaunpur. In previous lectures, I have told you detail about the TS of anthers and how many anther walls are present. They include the pollen sacs as well as structure of pollen grain. Today, now we are going to discuss of the third lectures of male reproductive part of sexual reproduction of flowering plants, that is known as development of male gametophyte. So today now we are going to discuss the male gametophytes. तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको यह बात बताया था कि पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट्स। यही बात हमने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये मेल गैमेटोफाइट्स कैसे डेवलप्ड होता है फ्रॉम द पोलन ग्रेन। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर easy understanding the development of male gametophyte, they are categorized into two parts. The first before pollination in the pollen sac, देखो दो पार्ट्स में हम इसको बात डिस्कस करेंगे मेल गैमेटोफाइट्स का। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल द पोलन ग्रेन्स दे आर डेवलप्ड, दे आर मॉडिफाइड बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन। तो बिफोर पॉलिनेशन मीन्स ऑल द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द एंथर, के अंदर होता है। तो यहां पर ये जो बात हम बताएंगे, यहां पर क्या होगा, हियर इज द वन पोलन ग्रेन्स, हियर इज द पोलन ग्रेन्स, हियर इज द न्यूक्लियस and the outer walls, that is known as exignes. Here is the germ pores, they are present in hairs. Here is the cytoplasms. So here is the exign. The second wall is known as intine. Here is the nucleus, and here is the cytoplasm. And here is the germ pore. Here is the pollen grains, here is the structure of pollen grains, simple pollen grains. हमने कल भी इस पर डिटेल में आपको डिस्कस किया था कि pollen grains are mostly spherical or rounded in shape. They are covered with the two layers. The outer layer is known as exign and inner layer is known as intine. Inside them cytoplasm and nucleus are present. तो एट द टाइम ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पोलन ग्रेन्स, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन एंड दिस माइटोटिक डिवीजन इज द नोन एज अनइक्वल डिवीजन। एक ऐसा डिवीजन होगा अनइक्वल डिवीजन मीन्स प्रोटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन्स divided mitotically, unequal division, then produces say two cell, ये दो cells का formation कर रहा है। Here is the pollen grains, and they are covered with the outer walls, that is known as exignes, and in here the one is the smaller cell, smaller cell, another is the larger cell, Here is this pollen grains divided mitotically to form two unequal division. The smaller cell is known as generative cell, and the larger cell
is known as vegetative cell. Vegetative cell. Vegetative cell. It means यहाँ पर आपने देखा कि unequal division takes place. तो smaller cell and larger cell, smaller cell and larger cell, larger cell. The smaller cell is known as generative cell, generative cell, generative cell, and the larger cell is known as vegetative cell, vegetative cell. तो आपने देखा कि at the time of development of male gametophytes, तो first of all inside the pollen sac, inside the microsporangium, pollen grains divide mitotically, and the division is unequal division. One is the smaller cell, another is the larger cell. The generative cells is the another property found in the generative cells. इसमें एक और भी प्रॉपर्टी इसको आपको मिलती है, और ये क्या है? लैक सेल वॉल, लैक सेल वॉल. यहां पर सेल वॉल लैक होता है. दे आर फ्रीली, ये फ्रीली मूवेबल, मूवेबल इन सेल साइटोप्लाज्म, इन सेल साइटोप्लाज्म. ये फ्रीली मूवेबल होता है. जब हम आगे की बात करेंगे तो आपको ये बात बताऊंगा. तो हियर इज द पोलन ग्रेन, हियर इज द टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज of pollen grain, pollen grain. The most of the angiospermic plant, pollen grains released from the anther. ध्यान देने की बात है, pollen grains released from the anther two cell stage. Inside the pollen sacs, pollen grains divide mitotically to form two cell stage. The smaller cell is known as generative cell and the larger cell is known as vegetative cell. The generative cells having divide of cell wall, means the cell walls are totally absent in the generative cell, so therefore they are freely movable in the cytoplasmic area. में वो move करता रहता है. ठीक है? This is the first steps of the development of the male gametophyte, means before pollination in the pollen sac. इन पॉलन सैक कहाँ पर होगा? इनसाइड द एंथर के अंदर अभी तक ही होगा. द टू सेल स्टेज आर फॉर्म इनसाइड द एंथर. ये होगा. फिर ब्रेक होती है, एंथर वॉल ब्रेक. दिस टू सेल स्टेज मूव टू दी फीमेल प्लांट, फीमेल पॉड के पास वो पहुंचेगा. तो दूसरा जो पार्ट इसका होगा आफ्टर पॉलिनेशन के बाद की बात होगी. तो बिफोर हुआ, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा. दिस इज द सेकेंड. एंड इज सेकेंड after pollination, after pollination, after pollination on the stigma, on the stigma. मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो रहा है कि after the dehiscence of anther, pollen grains released from the male part, male flowers, दे कैन मूव, वो मूव करते हैं आइदर अबायोटिक एजेंसी और बायोटिक एजेंसी. दे आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर के ऊपर जब डिपॉजिट होते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? when pollen grain deposited on स्टिग्मा पर जब डिपॉजिट होते हैं तो क्या करता है? सक द फ्लूइड फ्रॉम स्टिग्मा on stigma. After that pressure develop on intine wall. After that pollen tubes germinated. Pollen tubes originated
from germ pore area, germ pore area. After that, all cell content, all cell content of pollen grains or pollen grains migrate into pollen tubes, pollen tube. After that, generative cell again divide mitotically to produce two male gametes. This is the very important points. अभी एक मैंने समरी आपको बताया कि when the pollen grains deposited on the stigma, they suck the fluid on the stigma. After that, a pressure developed on the intine of the pollen grain, so therefore a tubes are developed, and this tube is known as pollen tubes originated from the germ pore area. हमने already मैंने डिस्कस किया कि in dicot plant 3 germ pores found in the pollen grains, but in case of monocots single germ pores are found, means this area pollen tubes are germinated. After that, all the cell content of the pollen grain migrate into the pollen tubes area, in where क्या हो रहा है कि generative cell again divide mitotically to form two male gametes. तो क्या हो रहा है, with the help of diagrams आपको मैं यहाँ पर समझाऊँ. Here is the germinating pollen tubes. And here is the generative cells. Here is the generative cells, and here is the vegetative cell or tube cell, and here is the generative cell, and here is the cytoplasmic area, cytoplasms, and this figure is germinating pollen tubes. Here is the pollen tube or germinated pollen tubes, germinating pollen grains. The another diagrams are mentioned in here. And here is the tube cells, and here is the two male gametes. Are formed in here, and all the contents are present in here. All the contents they are present in here, they are dry in nature. Here is the male gametophyte.
मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट्स। तो हियर इज द टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट। हियर इज द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल्स। द मेल गैमेटोफाइट्स, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट्स। आपको मैंने पहले भी बताया था कि व्हेन द pollen grains deposited on the stigma, they suck the fluid, a pressure developed on the intine wall, a tubes are developed that is known as pollen tubes। जब ये ट्यूब बढ़ता चला जाता है, ध्यान दो यहाँ पर आप देखो ट्यूब्स, तो ऑल द कंटेंट ऑफ द सेल्स ऑफ pollen grain, ठीक है, pollen grain सेल्स का जितने भी कंटेंट होंगे माइग्रेट टू दी pollen tubes एरिया। ये कहाँ पर होगा? दैट इज नोन एज pollen ट्यूब। ये pollen ट्यूब में चले आते हैं। इन वेयर ये जो जनरेटिव सेल जो फ्रीली मूवेबल था, दे अगेन डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स। ये टू मेल गैमेट्स में फॉर्म हो जाता है। इट मीन्स द मेल गैमेटोफाइट्स रिप्रेजेंट थ्री सेल स्टेज। वन इज द वेजिटेटिव सेल्स और ट्यूब सेल, एंड टू आर द मेल गैमेट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये थ्री सेल स्टेज दैट इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। और ये डेवलप्ड किससे हुआ? द मेल गैमेटोफाइट दे आर डेवलप फ्रॉम द पोलन ग्रेन। और इसको मैंने बताया कि दो पार्ट में स्प्लिट कर गया, बिफोर पॉलिनेशन इनसाइड द पोलन सैक एंड आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा। जब ये स्टिग्मा पर आता है तभी हुई वह मेल गैमेटोफाइट्स में वो कन्वर्ट हो पाता है। जब तक ये एंथर के अंदर होगा वो मेल गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। इस चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया। तो अब ये आपको कोई ये क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। वो कौन कौन से डिवीजन होंगे? तो आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर उस डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो हमने क्या आपको बताया था कि हियर इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, टू इन नंबर इनसाइड द पोलन सैक मैंने बताया था। देन converted into microspore tetrad microspore with the help of meiosis division to tetrad microspore का फॉर्मेशन होता था, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। फिर पोलन ग्रेन्स जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कर रहा है, द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन देन प्रोड्यूसेस ए टू सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। टू सेल स्टेज ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, वन इज द जनरेटिव सेल एंड अदर इज द वेजिटेटिव सेल। फिर इसके बाद अगेन यहाँ पर आपने देखा कि फिर अगेन क्या हो जाए, जनरेटिव सेल जो होगी, देन अगेन माइटोटिक डिवीजन इन जनरेटिव सेल then produces three cell stage of male gametophyte। तो अगर आप ये देख सकते हो, ये थ्री सेल स्टेज ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हाउ मेनी डिवीजन, वन मियोटिक डिवीजन एंड टू माइटोटिक डिवीजन। तो टोटल क्या था, वन मियोसिस एंड टू mitotic division takes place for the development of male gametophytes। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार ये पूछा भी जाता है आपको बोर्ड्स के एग्जाम्स में। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द पोलन ग्रेन, तो उसको आप इजली यहाँ से आप बता लोगे। तो हियर द मेल गैमेटोफाइट्स आर टोटली फिनिश। इज पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी। अभी तक आपने देखा कि पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट इन द सम स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स, दे शो एलर्जिक रिएक्शन इन सम पीपल। कुछ पीपल्स में एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। जैसे हम कुछ सम प्लांट्स दे आर बिलोंगिंग टू एनिमोफिलस प्लांट। अगर इसमें एनिमोफिलस का प्लांट का मतलब होता है
पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड, जिसमें पॉलिनेशन बाय विंड के द्वारा हो, तो दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज एनिमोफिलस प्लांट। एंड क्यों ऐसा एलर्जिक रिएक्शन के लिए ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिकॉज द साइज ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑफ एनिमोफिलस प्लांट आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड के थ्रू वो चले जाते हैं। तो जब ये छोटे साइज़ के होंगे तो ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं? हमारे नोज़ के अंदर से भी जा सकते हैं और वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन को प्रोसीड कर देते हैं। तो सम प्लांट्स जो होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किया हुआ है, द प्लांट्स, एलर्जिक प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होंगे वह कौन से हैं? चीनोपोडियम, 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 एमरैंथस, एमरैंथस, चीनोपोडियम, एमरैंथस, पार्थेनियम, 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 एंड ये जो ऑल दीज प्लांट्स शो पॉलन एलर्जी, कुछ ये शो करते हैं पॉलन एलर्जी, इससे एलर्जी होती है, इससे प्रॉब्लम्स होती है पॉलन एलर्जी इन सम पीपल, नॉट ऑल, इन सम पीपल, सम पीपल्स, सम पीपल्स। अभी करें कि ये क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, सिम्टम्स में क्या आ सकते हैं? सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक्स, स्नीजिंग, स्नीजिंग, स्टफी नोज, स्टफी नोज, वाटरी आई, watery eyes, abbreviated, abbreviated, asthmatic, asthmatic reaction, asthmatic reactions all are caused due to pollen grains। ये pollen grains के स्नीजिंग जो अभी हम सभी जानते हैं, बार बार छींकना जिसको बोलते हो, वाटरी आई, आँखों से पानी आना, स्टिफी नोज का मतलब होता है कि डिपोजिशन ऑफ म्यूकस इन द नोस्ट्रल चैम्बर्स में डिपोजिशंस हो जाते हैं। ड्यू टू दिस नोज आर स्टिफी इन नेचर्स, वाटरी आई, एब्रीवेटेड अस्थमेटिक रिएक्शंस का मतलब होता है अस्थमा, अस्थमा में ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ पॉलन एलर्जी। ये पॉलन एलर्जी का ये मेन सिम्टम्स माना जाता है और ये जिसके कारण से आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो सम सिम्टम्स आर अपीयर ड्यू टू द पॉलन ग्रेन्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पॉलन एलर्जी। इन द सम प्लांट, नॉट ऑल प्लांट, एंड मोस्टली द प्लांट दे आर बिलोंगिंग टू एनिमोफिलस प्लांट। वो ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें पॉलिनेशन बाय विंड के थ्रू होता हो। कुछ प्लांट का नाम मैंने दिया है, चीनोपोडियम, एमरैंथस एंड पार्थेनियम, ये जो होते हैं एंड दे शो pollen allergy. It means the pollen grains are very small in size. They affect our respiratory, mostly in respiratory systems को affect करते हैं, like bronchitis as well as asthmatic attacks are occur due to pollen grains के कारण से हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो pollen grains होते हैं there is no any problems created for human beings. Some pollen grains so allergic reaction क्या करते हैं? Proceed allergic reaction in human beings. तो here is the pollen allergy. Next is pollen product. Pollen product. Pollen grains are rich in nutrients, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स भी पाए जा रहे हैं आज, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। pollen consumption
have been claimed to increase the performance, to enhance the performance of athletes and race horses as well as in the present time recent time use as pollen tablets for food supplements के रूप में यूज किए जा रहे हैं, एज वेल एज नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट हुआ। ये नेक्स्ट इज द पोलन क्रीम यूज फॉर wound healing, energy sac use for energy purposes। तो अभी आपने देखा कि पोलेन प्रोडक्ट क्या है। इन द पोलेन प्रोडक्ट की बात होने की, पोलेन ग्रेन्स आर हाईली न्यूट्रिटिव इन नेचर्स। इसका बेनिफिशियल भी है, बेनिफिशियल मतलब इसका बेनिफिशियल यूजेज भी है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलेन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड, इस पर बैन भी लगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, आज एथलीट्स हैं या अगर हम घोड़े की बात करें, जो रेस करते हैं, अगर उनको दिया जाता है तो क्या करता है, इन्हांस द परफॉर्मेंस, इन्हांस द मसल्स परफॉर्मेंस। ध्यान देना, मसल्स का, किसका, मसल्स के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है, जिसके कारण से वह फास्ट क्या करता, रन कर सकता है। तो एथलीट्स को बैन लगा दिया गया कि आप पोलेन टैबलेट्स नहीं ले सकते हो, क्योंकि यह क्या करती है, हमारे मसल्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। एक्स्ट्रा परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस आर वेरी फास्ट ड्यू टू पोलेन टैबलेट्स के कारण से हो रहा है। तो इस पर भी आज बैन लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आज इससे हम क्रीम भी बना रहे हैं, पोलेन क्रीम्स, एंड द पोलेन क्रीम्स मोस्टली इन वुंड हीलिंग, इन बर्निंग, अगर बर्न हो रहा है, किसी को जल गया है और उसको अगर उस घाव की फीलिंग करनी हो तो वहाँ पर भी आज पोलेन क्रीम्स को यूज किया जाता है, जो पोलेन से बनाया जाने वाला क्रीम है। एनर्जी सेक के रूप में यूज किया जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये था पोलेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, पोलेन वाइबिलिटी। नेक्स्ट इज द पोलेन वाइबिलिटी। पोलेन वाइबिलिटी मीन्स क्या होता है कि वाइबिलिटी का मतलब जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन। पोलेन वाइबिलिटी मीन्स germination। पोलेन वाइबिलिटी और पोलेन जर्मिनेशन वेरीज फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। हमें भी बात इस पर करूंगा, तो पहले ये पोलेन वाइबिलिटी है क्या। व्हेन द पोलेन ग्रेन, ध्यान देना, व्हेन द पोलेन ग्रेन्स डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा के जब ऊपर ये डिपॉजिट होते हैं, आफ्टर दैट क्या होगा, पोलेन ग्रेन्स जर्मिनेटेड, ये पोलेन ग्रेन्स जर्मिनेट होगा। तो दिस पीरियड इज नोन एज, ऐसे पीरियड को हम क्या बोलते हैं, दिस पीरियड इज नोन एज पोलेन वाइबिलिटी। ये कितना समय ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, तो दिस पीरियड इज नोन एज पोलेन वाइबिलिटी। और पोलेन वाइबिलिटी जैसे अभी क्या हुआ, समझो कि हियर इज द कॉर्पेल्स
ये यहाँ पर ईयर इज द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ईयर्स। व्हेन द पोलन ग्रेन्स डिपॉजिटेड इन ईयर, यहाँ पर अगर ये डिपॉजिट हो रहा है, आफ्टर दैट पोलन ट्यूब्स और डेवलप, ये जर्मिनेट हो जाएंगे। जब जर्मिनेट होंगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स, इसके थ्रू क्या होगा, ये अंदर जा रहा है, तो जर्मिनेशन इसकी जो हो रही है। अब यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ ये जो ऑल द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स इंटर इनसाइड द पोलन ट्यूब्स, ये पोलन ट्यूब्स के अंदर हो रहा है, पोलन ट्यूब। तो इन्होंने कहा कि दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलन जर्मिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, पोलन जर्मिनेशन। तो पोलन जर्मिनेशन, ये जो पोलन जर्मिनेशन और पोलन वाइबिलिटी वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ध्यान देना, पोलन वाइबिलिटी वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, स्पीसीज टू स्पीसीज, ये वेरी करेगा, ये वेरी करता है। जैसे नंबर 1 एग्जांपल्स लिया जाए, राइस एंड वीट दे आर जर्मिनेटेड विद इन 30 मिनट्स के अंदर ये जर्मिनेट हो जाते हैं। व्हेन द पोलन ग्रेन्स ऑफ द राइस एंड वीट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा आफ्टर 30 मिनट्स दे आर जर्मिनेटेड, ये जर्मिनेट हो जाते हैं। सेकेंड, रोजेसी, सोलेनेसी, ये सब फैमिली के नाम हैं, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी, दिस इज ऑल द फैमिली। द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्यू मंथ्स लगते हैं, फ्यू मंथ्स। आप डिपॉजिट होगा, कुछ महीने लग जाते हैं उसको जर्मिनेट होने में। तो आपने देखा फ्यू मंथ और सेवरल मंथ, इसी को दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं, और सेवरल मंथ्स। इट मीन्स एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि पोलन वाइबिलिटी और पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वाइबिलिटी क्या हुआ, वाइबिलिटी का मतलब जिसके अंदर जर्मिनेट करने की एबिलिटी होती है, दैट इज नोन एज वाइबिलिटी। और ये जो वाइबिलिटी होती है कब ये इसको देखी जाती है, व्हेन द पोलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। तो जो ये जर्मिनेट हुआ वह वाइबल पोलन ग्रेन्स हुआ, जो जर्मिनेट नहीं हुआ, समझो ये जर्मिनेट नहीं हो रहा, दिस इज द नॉन वाइबल। ये कैसा हो गया, नॉन वाइबल पोलन ग्रेन, ये नॉन वाइबल पोलन ग्रेन। तो जो जर्मिनेट हो रहा है दैट इज नोन एज वाइबल पोलन ग्रेन्स, और जो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है दैट इज नोन एज नॉन वाइबल पोलन ग्रेन। नेक्स्ट इज द पोलन बैंक्स, इज द पोलन बैंक। देखिए पोलन बैंक क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। बैंक, ब्लड बैंक, सीमेन बैंक, पोलन बैंक। जैसे ब्लड को आज हमारे कुछ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग इकट्ठा करते हैं, जब किसी को ज़रूरत होती है तो वो उसको दिया जाता है। इसी तरह से सीमेन बैंक भी होता है एनिमल के केस में, वहाँ सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, फिर जब किसी को नीड होती है तो सीमेन को हम लोग उसको दे दिया जाता है। इसी तरह से पोलन ग्रेन का भी क्या होता है, स्टोरेज किया जाता है, एंड दिस स्टोरेज, उस स्टोरेज एरिया को क्या बोलते हैं, पोलन बैंक एरिया। अब ये इन्होंने क्या कहा कि ये जो पोलन, अगर हम किसी भी स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन, ध्यान देना, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन फॉर अ ईयर, एक साल के लिए हमको स्टोर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशंस बन रहा है कि अगर एक साल के लिए हमको स्टोर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, मीन्स इसके बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन स्टोर, पोलन ग्रेन को स्टोर करेंगे, स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन in -196 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको स्टोर कर देते हैं, और ये इतना कम टेम्परेचर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। मतलब जब किसी भी चीज़ों को हम माइनस पर अगर स्टोर करते हैं
तो दिस फिनोमिना इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। इट मीन्स अगर इसको आप उस पर स्टोर करते हो तो पॉलन ग्रेन्स कभी वो खराब नहीं होगा जब तक इस लिक्विड मीडियम में वो पड़ा रहेगा। और अब इसके लिए इन्होंने कहा कि ये जब स्टोर कर लिया जाता है, जब इसको स्टोर कर देते हैं तो दिस पॉलन ग्रेन्स यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। जब किसी भी हमको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम नई वैरायटी डेवलप करना हो तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आज उसको यूज कर रहे हैं, यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पर हम पॉलन ग्रेन्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एंड द सेंटर, और ये जो सेंटर है, द सेंटर जहाँ पर वो सेंटर है, सेंटर्स वेयर स्टोरेड पॉलन ग्रेन्स जहाँ पर स्टोर हो रहा है उस सेंटर का नाम क्या हो रहा है, पॉलन बैंक। उसी को क्या बोल रहे हैं, पॉलन बैंक। उसी को क्या हम करें, पॉलन बैंक। यही पॉलन बैंक है। तो ये जो सेंटर है, ध्यान देना, उस एरिया को जहाँ पर स्टोर हो रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज नोन एज पॉलन, ए सेंटर वेयर स्टोर्ड पॉलन ग्रेन। दिस एरिया, दिस सेंटर इज नोन एज पॉलन बैंक। तो पॉलन बैंक का मतलब होता है, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया। आफ्टर दैट ऑल द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन इन -198 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस techniques is known as cryopreservation to store the pollen grain for long times के लिए without any damaging। कोई भी डैमेज नहीं होता है, नो एनी वाइबिलिटी भी उसकी अफेक्ट नहीं होती, वो मेंटेन रहती है। ध्यान देना कि when the pollen grain need in agricultural sector for new variety that is known as, उसी को हम बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आज न्यू वैरायटी डेवलप करने में प्लांट ब्रीडिंग इज ए टाइप ऑफ टेक्निक्स बाय विच न्यू वैरायटी आर डेवलप्ड। तो क्या करते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जो होता है दे आर इजली, ये जो पॉलन बैंक्स होगा, जो यहाँ पर पॉलन बैंक्स होगा वो कलेक्ट फ्रॉम द प्लांट ब्रीडर्स, वो उसको कलेक्ट करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट, आफ्टर दैट न्यू वैरायटी आर डेवलप्ड। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज इस पॉलन बैंक का होता है, सप्लाई ऑफ पॉलन ग्रेन इन ब्रीडिंग प्रोग्राम एरिया, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम एरिया, कि जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं उनको इजली में पॉलन ग्रेन्स आपको उस पॉलन बैंक से मिल जाता है। तो टुडे इसी तरह से मेल गैमेटोफाइट्स और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स of the sexual reproduction of flowering plant is totally finished. Thank you for watching this video. Have a nice day all of you.